Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today's topic is genes. So let's get started. The term genes was introduced by Johnson in 1909. Prior to him, Mendel had used the word factor for a specific, distinct, particulate unit of inheritance that takes part in the expression of a trait. सो फर्स्ट टर्म जो दिया था जीन्स के बारे में उन्होंने जॉनसन ने दिया था इन 1909 एंड उससे पहले जो मेंडल थे मेंडल ने एक फैक्टर वर्ड यूज़ किया था और जो कि ये फैक्टर क्या करता था, ये फैक्टर जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता था, यानी किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन में क्या करता था, हेल्प करता था. लेटर क्या हुआ कि ये जो वर्ड है फैक्टर वर्ड को ही ये फैक्टर वर्ड को ही जीन्स कहा गया. तो फर्स्टली मेंडल ने दिया था बट फैक्टर वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, नॉट जीन. Johnson has defined gene as an elementary unit of inheritance which can be assigned to a particular trait. Morgan's work suggested gene to be the shortest segment of chromosome which can be separated through crossing over, can undergo mutation and influence or more traits. A gene is defined as a unit of inheritance composed of a segment of DNA or chromosome situated at a specific locus या gene locus which carries coded information associated with a specific function and can undergo crossing over as a mutation. So basically gene क्या है? Gene एक inheritance का क्या unit है? ये unit of or we can say small segment of DNA और chromosome, ठीक है, जो क्या होता है जिन एक्सप्रेशन में या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है. So basically a gene is a unit of genetic material which is able to replicate. It is a unit of recombination and a unit of genetic material which can undergo mutation. A unit of hereditary connected with a somatic structure or function that leads to a phenotypic expression. Modern concept of gene क्या है? After the discovery of DNA, the gene has been defined as a cistron, recon and muton. And basically ये थ्री पार्ट्स हैं जीन्स के. सिस्ट्रॉन है, रिकॉन है एंड द म्यूटॉन. सिस्ट्रॉन क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन. ये यूनिट का फंक्शन होता है. ये जो यूनिट है, सॉरी, ये यूनिट है, ये बेसिकली फंक्शन का यूनिट है, ठीक है. सिस्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए molecule and consist of a linear sequence of a nucleotide which controls some cellular function, and the cistron begin with the initiation codon and ends with the terminating codon. Each cistron responsible for coding one messenger RNA molecule. Each cistron consists of 100 of mutons and recon. Okay. Next come to the recon. It is a unit of recombination. सिस्ट्रॉन क्या था? यूनिट ऑफ फंक्शन. ये यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट capable of recombining genetically, and the recon consists of one or two pairs of nucleotides, possibly only one pair. And next come to the muton. It is a unit of mutation and shortest chromosomal unit capable of undergoing mutation has been called the muton. इसलिए इसको म्यूटॉन बोलते हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो सकता है. सो नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ जीन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. So first is housekeeping genes, also known as constitutive genes. They are those genes which are constantly expressing themselves in cell because their products are required for the normal cellular activities. So basically क्या करते हैं? Which are constantly expressing themselves in a cell because their products are required for the normal cell activity. तो ये basically एक constant की तरह काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये एक continuity बना के रखते हैं. और इनका फंक्शन क्या है? सेलुलर एक्टिविटीज़ को क्या करना, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं.
सो बेसिकली नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, जस्ट अपोजिट होता है। वो हाउस कीपिंग उसकी रेगुलर ज़रूरत होती है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जिसे लग्जरी जीन्स भी कहते हैं। तो द जीन्स आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन अ सेल, और ये डिफरेंस होता है दोनों में। कॉन्स्टिट्यूटिव वाला जो था वो एक्सप्रेस करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ में कंटिन्यूसली, लेकिन ये क्या करता है, ये ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं करता देमसेल्फ इन अ सेल। दे आर स्विच्ड ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। जब भी सेलुलर एक्टिविटीज़ को इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये ऑन ऑफ इसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या वी कैन से लग्जरी जीन्स। फर्स्ट इज इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। Inducible genes क्या होते हैं? The genes are the switched on in response to the presence of a chemical substances or inducer which is required for the functioning of the product of gene activities. तो बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में, जिसे हम इंड्यूसर कहते हैं, ये स्विच्ड ऑन हो जाते हैं और फंक्शन करने लगते हैं फॉर सेल एक्टिविटीज़। रिप्रेसिबल जीन्स क्या होते हैं? दे आर दो जीन्स विच कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टिल अ केमिकल इनहिबिट और रिप्रेस देयर एक्टिविटीज़। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें किसी भी केमिकल, ये बेसिकली कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही केमिकल सब्सटेंसेस आ जाता है तो इनकी एक्टिविटी स्विच्ड ऑफ हो जाती है। सो ये अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट कम टू द मल्टी जीन्स या मल्टीपल जीन्स फैमिली। It is a group of similar or nearly similar genes for meeting requirement of time and disease specific product. Next is आपका repeated genes. The genes occur in a multiple copies because their products are required in larger quantity. तो ये multiple copies में presence होते हैं, इसलिए इसका नाम भी repeated genes है. Next come to the pseudo genes. They are genes which have homology to function genes but are unable to produce functional products due to the nonsense codon insertion, deletion and the inactivation of promoter regions. Basically ये फंक्शनल जीन्स की तरह होते हैं, बट ये क्या होते हैं, होमोलॉगी इनके फंक्शनल जो जीन्स की तरह होती है, बट ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर नहीं पाते, जैसे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसर्शन और डिलीशन नॉनसेंस कोडान की वजह से। तो अब आते हैं प्रोसेस्ड जीन्स। दे आर यूकैरियोटिक जीन्स विच लैक इंट्रॉन्स। इसमें इंट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। एंड प्रोसेस्ड जीन्स आर जनरली नॉन फंक्शनल एज दे लैक प्रोमोटर्स। इनमें भी प्रोमोटर्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स आर दो जीन्स विच पजेस एक्स्ट्रा और नॉन एसेंशियल रीजन, जिसे हम एक्स्ट्रा रीज़न होता है इसमें, इसलिए इसको स्प्लिट जीन्स कहते हैं, विद एसेंशियल और कोडिंग पार्ट्स। जो एक्स्ट्रा रीज़न होता है उसमें एसेंशियल और कोडिंग पार्ट्स होता है। द नॉन एसेंशियल पार्ट आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। और जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है इसमें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इंटरस्पर्स्ड होता है जो कि एसेंशियल पार्ट होता है, और जो कि इंट्रॉन्स होता है जो कि नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रीज़न पाया जा रहा था, और स्पेशल डीएनए और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा रीज़न पाया जाता है इसमें। हम और इसमें क्या होता है, एसेंशियल जो कोडिंग पार्ट होता है इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। कोडिंग पार्ट जो होता है, जैसे कि हमने बोला ना कि नॉन एसेंशियल रीज़न होता है, उसको हम इंटरस्पर्स को हम एक्सॉन्स कहते हैं, और नॉन एसेंशियल पार्ट को हम इंट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोजोन्स। ये आपके इंपॉर्टेंट जंपिंग जीन्स भी कहते हैं समटाइम्स। दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन जंप और मूव फ्रॉम वन प्लेस in the genome to another. Transposons were first discovered by McClinton in case of maize, when she found that a segment of DNA moved into the gene coding for a pigmented kernels and produced light colored kernels. ट्रांसपोजोन इन्होंने मैकलिंगटन ने इसको डिस्कवर किया था जब ये मेज में इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड ये जंपिंग जीन्स होते हैं क्योंकि ये जीनोम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सो ट्रांसपोजोन्स पजेसेस रेपिटेटिव डीएनए ईदर सिमिलर और इन्वर्टेड एट देयर एंड्स। सम 5, 7 और 9 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं ये।
ओवरलैपिंग जीन्स होता है, जीन्स आर डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट जीन्स व्हिच coding reason are particularly overlapping. In other words, a single stretch of DNA codes for portion of two separate proteins. Next, come to the structural genes. Structural genes are those genes which have encoded information for the synthesis of chemical substances required for cellular machinery. मैं अब बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाए. आपको नोट्स चाहिए थी, ये प्रॉपर नोट्स है इसमें. रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन्स डू नॉट ट्रांसक्राइब आरएनए फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स. दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन को ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. The important regulatory genes are promoters, terminator, operator and repressor producing and regulator genes होते हैं ये सारे. Next come to the junk genes, a DNA sequence that is a part of a genome and is not known to code for protein or to regulate the expression of genes. एक DNA sequence का वो पार्ट जो जीनोम में है बट वो कोडिंग प्रोटीन कोडिंग में हेल्प नहीं कर रहा है और रेगुलेट भी नहीं कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के, तो जंक जीन्स कहलाते हैं. नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है जीन फंक्शंस क्या है. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, तो ये जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर करता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में. Control the morphology of phenotype of individuals, and genes carry the hereditary information and from one generation to the next. Replication of gene is essential for the cell division के लिए भी essential होता है. They control the structure and metabolism of the body. ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं. तो ये ओवरऑल टाइप्स ऑफ जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड फंक्शन ऑफ जीन्स था. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.